Alright, now listen. Third one. Third topic is subsidiary book. But in subsidiary book, page 10. Page 10. See, yesterday at the end we discussed what are subsidiary books, right? Tell me, subsidiary books में होता क्या है? What are subsidiary books basically? Subdivision of journal, part of journal only. What are subsidiary books? Subdivision of journal. Okay. Why do we divide the journal into various parts? Specialization. The work becomes easier. Work becomes easier. That's why mainly we divide the journal, right? Into various small parts. Is it clear? Is it too much? This part has become change. नहीं हो तो ऐसे ही हो गए एकदम मुश्किल चलो tell me, why do we divide the journal into smaller parts? Because mainly for specialization. Work becomes easier, work becomes efficient, right? And what are the main subsidiary books you need to learn about? So they are purchase books, purchase return and sales book. And these are the four main subsidiary books. Apart from that, you have cash book, petty cash book, journal proper, you have bank book, and any other subsidiary book which you want to make, you can make. No problem. नॉर्मल सिनेरियो में हम लोग ये सब बनाते हैं उसमें से फर्स्ट पार्ट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दे आर द फोर मेन सब्सिडियरी परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स व्हाट डू वी रिकॉर्ड इन परचेज सेल्स परचेज रिटर्न सेल्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स नो assets only goods, right? Then we also saw yesterday the format of these books and the documents used. What are the documents used in purchase book? Invoice, sales book, outward invoice, purchase return. Why are these documents important? Can we record the transaction without documentary evidence? Every transaction in bookkeeping needs to have a documentary evidence, which makes it genuine. Okay? तो transaction real होने के लिए संभाल ट्रांजैक्शन रियल होने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना जरूरी है. इट मे बी एन ऑनलाइन प्रूफ, इट मे बी एन ऑफलाइन प्रूफ. इज इट क्लियर? नाउ in your CA articleship, when you do audits and all, there are two main parts of audits, vouching and verification. तो आप जब vouching वगैरह करते हो तो आप यही करते हो कि बुक एंट्रीज को आप कंपेयर करते हो वाउचर्स के साथ. व्हाट आर वाउचर्स? ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक्स, invoices, bills, okay, receipts, payment vouchers, journal vouchers. इनके साथ आप चेक करते हो बुक के एंट्रीज कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं. कभी कभी बिजनेसेस क्या करते हैं, बुक में ट्रांजैक्शन रहेगा लेकिन उसका वाउचर अवेलेबल नहीं रहेगा, फिर ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर देते हैं. तो ऑडिटर मतलब सीए का काम क्या होता है, चेक करना कि भैया ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है कि नहीं. तो काफी बार ऑडिट्स में आप जाओगे, वेरिफिकेशन में आप एसेट्स और लायबिलिटीज को वेरीफाई करते हो विद फिजिकल एसेट्स एंड फिजिकल लायबिलिटीज. बुक एसेट्स और बुक लायबिलिटी को यू कंपेयर विद फिजिकल एसेट्स एंड फिजिकल लायबिलिटीज. And under verification, you do that. Under vouching, you do the transactions, purchase, sales, incomes and expenses. इनका आप check करो. Okay?
Now, छोड़ देना, क्यों डिस्टर्ब करने का बीच में आके? सॉरी सर पे लिख क्या सॉरी एवरी लेक्चर? वही टाइम पे तेरे को 5 ही मिनट का कोई प्रॉब्लम है. It means you are inherently lazy with respect to time. मॉर्निंग के टाइम पे भी इवनिंग के 9:30 के लेक्चर में 9:40, 7:15 का लेक्चर में 7:20, 5 o'clock का लेक्चर में 5:10, 5:30 का लेक्चर तो 5:40. क्या फालतू के लिए है? 5:15 तू लेट आता है उसका प्रॉब्लम नहीं है, तेरा मिस होएगा. बाकी लोग का काय को हैरान करता है यार कि ये सब समझ में आता है. तेरे वजह से कितना लोग को हैरान करते हुआ अभी 40 लोग. उसका हैरान गति होता है, उतना समझ के आ जाता है. बाकी 40 लोग का क्यों हैरान गति करने का? Now, coming back to the vouchers and documents. The vouchers and documents, these are very important because if there are no vouchers, if there are no documentary evidence, the transaction cannot be considered as genuine. Okay, there are organizations who make fake vouchers also. सीए का काम वो भी होता है कि वेरीफाई करें फ्रॉम थर्ड पार्टीज. ये तुमको अगर इनवॉइस फेक तुमने बनाया तो उसका वेरिफिकेशन कैसे होएगा? सामने क्रेडिटर है, उसके साथ चेक कर सकता है. क्रेडिटर ने इश्यू किया रहेगा तो तुमको मिला रहेगा. तो फेक वाउचर तो 2 सेकंड में, एंट्री भी 2 सेकंड में पकड़ के आ सकते हो, पकड़ में आ सकती है. तुमने अगर सेल किया है और फेक है, ऑर्गेनाइजेशन बोला वाउचर नहीं मिल रहा है, तो तुम सामने डेटर के साथ चेक कर लो, उसके परचेज में होना चाहिए. तो देयर आर ऑलवेज पार्टीज रिलेटेड बिकॉज यू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. तुमने सैलरी का फेक वाउचर बना दिया, पेमेंट वाउचर. समझो मेरे पास इतना एम्प्लॉय है, पेरोल पर इतना सैलरी दिया है. एम्प्लॉय को पकड़ो, एम्प्लॉय ढूंढो, उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं देख लो. क्योंकि व्हाइट वाला ही ट्रांजैक्शन जो चेक से हुआ है वही रिकॉर्ड होता है. कैश तो वैसे भी कोई बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करता. तो अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो एवरी टाइम इट कैन बी इजीली कोऑर्डिनेटेड विद द कंसर्न पार्टी एंड फाउंड आउट. आराम से दूसरा पार्टी के साथ वेरीफाई करके चेक हो सकता. क्योंकि आपने किसी को पे किया तो सामने वाले ने रिसीव किया होगा, आपने रिसीव किया तो सामने वाले ने पे किया होगा, आपने परचेज किया तो सामने वाले का सेल है, आपने सेल किया तो सामने वाले का परचेज है. तो ट्रांजैक्शन को पकड़ना, फेक ट्रांजैक्शन को ढूंढना इज वेरी सिंपल. वो बच्चे का खेल है. तुमको बेसिक अकाउंटिंग आ गया, बेसिक ऑडिटिंग आ गया, आराम से कोई भी ट्रेड तुम पकड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. एवरीवन नोज एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ. ऑडिटर को पता होता है कंपनी में क्या खराब है, बिजनेस में क्या खराब है. जस्ट द फेस इज टर्न बिकॉज ऑफ मनी. So it's not difficult to catch any black transaction or any fake transaction. It is very, very easy. Is it clear? Just that थोड़े बहुत सिंसियर बन के करो. ओके, अच्छा से बन जाएगा. थोड़ा मतलब 80-90%. सब पुलिस वाले अभी so all this situation is improving actually in our country. पहले 10 साल पहले तो और खराब हालत थी. उसके क्रम में there was a scam called Satyam scam. This happened in 2011. 2011 में ये स्कैम हुआ था. Satyam was one of the leading software companies in the range of Infosys and TCS के रेंज का कॉम्पिटिटर था वो. सत्यम कंप्यूटर्स. उसका सीईओ था रामलिंगा राजू करके, साउथ का बंदा. वो बंदे ने जब बहुत चल रहा था शेयर और मार्केट अच्छा चल रहा था तो कैश निकाल रहे था बिजनेस में से, और ही स्टार्टेड पुटिंग दोस कैश इन द रियल एस्टेट एंड अपना पर्सनल यूज के लिए. सोचा कि वहां से कमा के वापस डाल दूंगा. सो 4,500 करोड़ कैश था बुक्स पे, दिख रहा था ऑन द बुक्स. बट एक्चुअली जब ऑडिट हुआ और चेक किया गया तो इट वाज ओनली लाइक 50-60 करोड़ कैश. 4,000 crores of cash was siphoned off from the books of the company. And auditors, I think the PwC था उसको डिबार्ड किया इंडिया में 2 साल के लिए. All these big fours are involved. Companies का audits are mainly done by all big fours only.
तो अभी इमेजिन वो इतना सारा स्कैम 3 साल 4 साल से चल रहा था थोड़ा थोड़ा करके, क्या ऑडिटर्स को मालूम नहीं रहेगा, सीएफओ को मालूम नहीं रहेगा, सबको पता था, बट उसको स्केप बोर्ड बनाया गया, उसको जेल में डाला गया, एंड देन समथिंग हैपेंड, आई थिंक सुसाइड करके बेचारा की कोलैप्स एंड डाइड, ऐसा कुछ हो गया, रामलिंगा राजू. सो दिस वाज अ बिग स्कैम दैट हर्ट. एक दिन में शेयर प्राइस मार्केट में 100 रुपए का 5 रुपया हो गया था. 100 रुपीज का शेयर प्राइस सीधा 5 रुपीज हो गया. बिल्कुल ईमानदार थी ने जॉब पर आपे तो ना कंपनी ની વાત લગાડી દેશે. No, 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 no. That is what is changing in this year. ऐसा स्कैम हुआ तो कितना लोग को प्रॉब्लम होता है. So then people search and people try to make good things ahead. वैसा. तो अभी ये स्कैम पहले तो बहुत सारे होते थे. अंदर में भर भर के हुआ था ऐसा. उसके बाद कम होते गया. अभी recent years में you haven't heard this type of big scam. 10 years back, 15 years back और ज्यादा थे. अभी धीरे धीरे इसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है. Everyone and out of गुडविल तो खराब हो ही रहा है सबका, बैंड तो बज ही रहा है. तो अच्छा जेन्युइनली काम करो और ग्रो करो. जितना क्लीन अकाउंट रखोगे उतना बेटर ही है तुम्हारे लिए. क्या बुरा है. ओके, वो 10-20% का लालच के लिए वाई टू कीप एट स्टेक योर एंटायर गुडविल एंड नेम ऑफ द फर्म ना. दैट इज अ बिग रिस्क यू आर टेकिंग जस्ट फॉर दैट लालच ऑफ 20-30%. max you can get extra just by saving some taxes or spending money here and there. Okay, genuinely you can. Tata's है, very clean books of accounts. They are growing so good. Asian Paints है, Pidilite है, HDFC Bank है. One of the cleanest books of accounts. Gold Zapata है, दूर तक कुछ आपको इतना मिलेगा नहीं. They maintain very high ethical standards in books of accounts. Okay. एक और स्कैम हुआ था recent years में, which was CCD. कैफे कॉफी डे का चेन दिख रहा, आउटलेट्स में बंद हो गए काफी सारे. So this happened some 3-4 years back. उसका भी सेम सीन था. 2000 करोड़ कैश रिफंड फ्रॉम द बैलेंस शीट, एंड दैट आल्सो गाय सबमिटेड सुसाइड. वो भी उसका ही ओनर था, साउथ का ही था, आंध्र प्रदेश का किधर का था, एंड ही आल्सो कमिटेड सुसाइड. एंड सब कुछ सो ऐसा कुछ नहीं. DLF was a big scam that hit the market. DLF का ओनर नॉर्थ इंडियन था, रॉबर्ट वाड्रा. ये जो राहुल गांधी है इसका साला, रॉबर्ट वाड्रा. साला नहीं, सॉरी, बहनोई. इसका बहन का हस्बैंड राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा. वो ओनर था DLF का. DLF was a huge scam, big scam, रियल एस्टेट कंपनी. एंड ऐसे फॉल निकला, कंपनी अंदर से खोखला है, बाहर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहा है. So CA का मेन काम ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस. ट्रू एंड फेयर व्यू, तो जो बिजनेस में वैसा दिखना चाहिए. तो वही आप ये डॉक्यूमेंट्स और ये ट्रांजैक्शन के प्रूफ के साथ आप मैच करके वेरीफाई कर सकते हो. ओके, इसलिए एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस. So that's why in purchase book we have a column called inward invoice. There are another columns also. वैसे तो 9-10 कॉलम का परचेज बुक सेल्स बुक बनता है. हाँ, 9 to 10 कॉलम्स का बनता है. इनवॉइस नंबर होता है आपका, ऑर्डर नंबर आता है, चलान नंबर आता है, फिर आपका क्रेडिटर डेटर का ड्यू अमाउंट आता है. ये सारा कॉलम, जीएसटी दिखता है. एनालिटिकल हमने किया था, याद है? जीएसटी, इनपुट आउटपुट, आईजीएसटी एंड देन टोटल. सो 9-10 कॉलम का होता है, बट आपको वैसा वाला नहीं है, आपको सादा वाला सब्सिडरी होता है जो हमने 11th में किया. बट सबसे इंपॉर्टेंट अगेन ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो उसका प्रूफ बना के रखो, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है कि नहीं. ओके, तो इसके बारे में हमने लर्न किया था कि इनवॉइस अगर आया, इनवर्ड इनवॉइस, तो मतलब आपने क्या किया, परचेज. आपने इनवॉइस बना के भेजा, आउटवर्ड इनवॉइस. एंड इज इनवॉइस एंड कैश मेमो वन एंड द सेम? सिमिलर. दिस इज फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट इज फॉर कैश. इनवॉइस का दूसरा नाम क्या होता है? बिल मेमो. विच मेमो? क्रेडिट. क्रेडिट मेमो एंड इनवॉइस आर सेम, वन एंड द सेम. फिर होता है परचेज रिटर्न. सॉरी, तो व्हाट इज द प्रूफ फॉर परचेज रिटर्न? डेबिट नोट. So whenever you return the goods, you will send a debit note. Whenever someone else returns the goods, you will send a credit note. When you send a debit note, you will get a credit note. When you send a credit note, you will get a debit note in return. All of you comfortable with that? These are acknowledging notes, okay? Cross returns को verify करने के लिए. Now let us take a problem. Basic problem ले लो. Page number 10 पे first problem. देखो क्या दिया है.
Write down the following transaction in the subsidiary journal of Shri Pawar. मतलब Shri Pawar. So in the subsidiary book of Shri Pawar, एक ही पेज पे चारों बना लो. याद आया कि तुमने किया था 7th में, आप लोगों ने किया था ये. इसमें रिकॉर्डिंग पार्ट इज वेरी इजी. डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, LF क्योंकि ये जर्नल है, इनवर्ड, इनवॉइस नंबर, अगेन डेट, इधर क्या आएगा, नेम ऑफ द कस्टमर, LF, एंड देन यू हैव डेबिट नोट नंबर, आउटवर्ड invoice number, again you have date, then what do you have, name of the supplier, LF, then you have debit note number, and the last one is date, name of the customer, LF, and credit note number. इंडिया में स्कैम्स इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि वेरी रेयर केसेस ना यू आर पुट इनटू जेल फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड. जेल में डालने का बहुत कम होता है. फाइनेंशियल फ्रॉड किया ना, छोटा चोर रहेगा उसको डाल देगा, बट कंपनी का फ्रॉड्स के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप सीधा जेल में डाले जाओ. तो केस चलते रहता है. दैट इज द प्रॉब्लम. अमेरिका दे बिकम वेरी स्ट्रिक्ट. एनरॉन का एक स्कैम हुआ था. आई टोल्ड यू अबाउट एनरॉन. एनरॉन का एक स्कैम हुआ था. एनरॉन वाज सिमिलर टू द बायजूस थिंग व्हिच हैपेंड इन इंडिया. बायजूस का क्या हुआ था, बायजूस का एक स्टूडेंट का फीस था कुछ 60,000. नहीं स्कैम वो कॉर्पोरेट फ्रॉड कैसे किया. वो फ्रॉड मतलब अभी उसने अपना ही इतना उड़ रहा था ना वो हवा में, खाली बोलते हैं ना टू बिग टू फेल सॉर्ट ऑफ हो जाता है. एक लेवल के बाद उनको लगता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं अकाउंटिंग. तो 60,000 रुपीज समझो स्टूडेंट 8 स्टैंडर्ड का पैकेज लिया बायजूस का, टैबलेट सब देता था उसको, और उसका फीस इंस्टॉलमेंट में होता था. मतलब 10,000 आपको अभी भरने का और बाकी 20-25 हजार आपको 6-8 महीने के बाद भरने का. और उसके बीच में कैसा था कि जब भी आपको जाने का छोड़ने का छोड़ सकते हो, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो. तो अगर उसने 10,000 का फीस कलेक्ट किया है तो उसको बुक्स में इनकम कितना दिखाना चाहिए, 10,000. अपना रूल है इनकम का. रियलाइजेशन कंसेप्ट वही बोलता है कि अर्न किया उतना दिखाओ, ज्यादा दिखाने का नहीं, कंजर्वेटिव. वो क्या करता था, 60 हजार दिखा देता, सीधा 60,000 दिखा देता था पूरा, और बीच में जो छोड़ के गए वो छोड़ के गए, उसका कुछ नहीं. तो उसके लिए देश टू मेक 2 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट. एक फाइनल अकाउंट जहां पर 10,000 दिखाता है, उसको एडजस्टेड फाइनल अकाउंट बोला था, और एक फाइनल अकाउंट जिसमें 60,000 दिखाता है. तो जब इन्वेस्टर को पिच करता था वो शार्क टैंक के जैसा, तब 60,000 वाला दिखा. उसको लगता था ये वैल्यूएशन है, इतना कस्टमर है, इतना रेवेन्यू है, चलो वो लोग तो कमाई देगा. इसके ऐसे करके वो फंड रेज करता था. फिर एडजस्टेड फाइनल अकाउंट दिखाने लग गया. फिर कोविड आया, कोविड तो बढ़ा, फिर ये रिसेशन आया, तो उसमें वो लोग को पता चला कि फंडिंग तो कम हो रहा है. तो अभी देखो भाई जनरली प्रॉफिट है कि नहीं, तो दिख रहा है तो प्रॉफिट तो डबल है, क्योंकि खर्चा सब जा रहे हैं मार्केटिंग में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में. आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा था, कितना सारा क्रिकेट मैच स्पॉन्सर कर रहा था, आपने देखा होगा. कौन सा कोचिंग क्लासेस को देखा है कि इंडियन नेशनल टीम का इंटरनेशनल सीरीज का स्पॉन्सर बन जाता है. इतना पैसा वो खाली मार्केटिंग में लगा. तो
Then all these things came into light, and then people stopped giving the funding. So Byju's का जो owner था उसका network went from like 8 or 9 billion dollars से zero almost. Is now near about zero. The net worth is zero. Company का value has fallen by 97% from top. 24-25 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन से कुछ बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे रह गया. बायजूस सिर्फ 300 मिलियन ऐसा कुछ हो गया. इवन एनरॉन ने भी सेम चीज किया था. एनरॉन वाज अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन यूएसए 2001 to 2003 में. उसने क्या किया? सेम चीज 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, आगे का 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट का इनकम अभी से बुक्स में दिखा रहा है. कैन यू शो दैट? व्हाई? क्योंकि आया नहीं आपका. प्री रिसीव्ड भी नहीं है, प्री रिसीव्ड भी नहीं है, कुछ नहीं, अर्न भी नहीं है. खाली बात हुआ है. एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बात हुआ है कि भाई हम तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा अगले 6-8 साल में, 10 साल में, और वो चीजें वो बुक्स में दिखा रहा था. तो उधर के इधर सेबी होता है. सेबी इज द वॉच डॉग फॉर ऑल द कंपनीज. कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. तो इन द यूएस यू हैव एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. तो वो पॉइंट किया ये गलत है, उसने उसको भी फोड़ा. उधर भी ऑफिशियल को पैसा खिलाया और एसईसी का क्लॉज चेंज करवा दिया लॉ में कि तुम ये चीज कर सकते हैं. ऐसा किया. तो एसईसी ने भी चेंज करके लॉ का क्लॉज चेंज करके इसका साथ में हाथ मिला दिया. एंड फॉर 6-7 years दिस थिंग वाज गोइंग ऑन. एंड लास्ट में 2-3 में बाहर आया, सेम थिंग हैपेंड. एक दिन में सब स्कैम. उधर कोई रिपोर्टर पीछे पड़ गया, जैसे झारखंड में का पीछे पड़ा था ना, ऐसा वन रिपोर्टर अंदर ऐसा घुसा, सब जगह निकाल के सीएफओ का निकाल के सब डेटा उसने पब्लिश कर दिया ओपन में. So one single day the stock price fell from like $100-120 से $10-11 in one single day, 90% fall. उसका भी सीईओ को जेल हुआ, चेयरमैन ने सुसाइड किया. उसके बाद यूएसए में कैपिटल पनिशमेंट आया. मतलब whenever you commit a financial fraud, सीएफओ और एमडी को डालेगा ही हम लोग जेल में डाल देगा सीधा. अगर फाइनेंशियल फ्रॉड किया तो सीएफओ या उसका जो मेन फाइनेंस वाला बंदा है ना, उसको उठा के हम लोग पहला जेल में डालेगा, बाद में चीज सब देखा जाए. तब से चीजें कंट्रोल में. ऐसा अभी तक इंडिया में आया. तो आपकी क्लास का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया आपने? ऑब्वियसली नहीं बना. बट बनाते हो? यस ऑब्वियसली. देयर इज सीए फाइल रिटर्न्स एवरीथिंग आई डू. हमको जीएसटी भरना पड़ता है. यस. अगर क्लासेस का ऐसे कुछ साइन अप नहीं किया तो चलता है ना? मैं तुमको बता दूं उसके बाद में भी. पर जो भी है लीगल है, इलीगल कुछ नहीं. So वैल्यू पॉइंट्स there are legal